Good morning, students. As we are discussing chapter 16, that is last chapter of your book of class 6. The chapter is garbage in, garbage out. In this chapter, we have discussed about what is garbage, what is the types of waste, biodegradable waste, non-biodegradable waste example of all that. After that we have discussed dealing with the waste, how we deal with biodegradable waste. In that we have discussed about landfilling. I have explained you very well in previous video what is the meaning of landfilling and how it is done. In second, we have discussed about composting. What is composting? What is the need of compost? Okay, beta. And the next is vermicomposting. And I have explained you very well what is vermicomposting. So today we will discuss as whatever the waste is produced at our home. Before throwing it, we should take some precautions, or we should think about before throwing the garbages, what should be thrown out or what should not. क्या हमको फेंकना चाहिए और क्या नहीं फेंकना चाहिए. So before, to conserve our environment, to conserve our earth, before throwing the garbages out in open area, we have to think, we have to sort out whatever the material or the garbages are biodegradable, that should be thrown out, and that which is not biodegradable, that should not be thrown. The material which are non-biodegradable, that should be stored in a safe way, in a safe area, that should not cause pollution, that should not pollute our environment. ठीक है बेटा, जितना हमारा बायोडिग्रेडेबल वेस्ट है उसको तो हम ओपन अपने फील्ड में डाल दें, गार्डन में डाल दें. After 1 week, 2 weeks, that will be finished. But the material which is non-biodegradable, before throwing that, we have to think. What we have to think? How we should dispose it. हमें इसे कैसे dispose करें that it harms our environment less, कि हमारे environment को कम नुकसान पहुँचाए. ठीक है बेटा. So in order to that protect our environment, one should follow 3R. We should follow triple R. राजा मौली वाली फिल्म में RRR जो आप लोगों ने देखा है, वो RRR नहीं है. ये RRR जो है ये हमारे अर्थ को प्रिजर्व करने के लिए है पोल्यूशन से. ओके बेटा. तो RRR. अब देखो बेटा इसका मतलब क्या है. रिड्यूस, रीयूज, रिसाइकिल. रिड्यूस, रीयूज एंड रिसाइकिल. ठीक है बेटा, ये इन तीनों का मतलब है. अब वो RR का मतलब मुझे नहीं पता कि भाई वो क्या है, लेकिन अगर हमको नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट को ट्रीट करना है, उसको डिस्पोज करना है, तो उसके लिए हम ये मेथड यूज कर सकते हैं. फर्स्ट वन इज रिड्यूस, सेकेंड वन इज रिड्यूस, reuse, third one is recycle.
What is the meaning of reduce? So it means reduce the use of non-biodegradable materials, means the material which is non-biodegradable, that should not decompose, that material should be used in less quantity or it should be avoid, means हमको उसका यूज रिड्यूस करना है. Suppose we are going market to purchase vegetables, so we should carry cotton cloth bag with us. When we will carry cloth bag, the vegetables vendor will give us vegetable in our cloth bag, not in polythenes. As we know, polythene is non-biodegradable. Okay, one problem is more. Sir, question is, we have to purchase different items like potato, tomato, chili, onion. Okay beta, so how is it possible to carry everything in one bag? तो बेटा इसके लिए सिंपल सा एक उपाय है जो हम सबको अपने घर पे फॉलो करना चाहिए. हमको अपने मदर सिस्टर से ये बात करनी चाहिए कि दे शुड मेक सच अ बैग दैट कंटेन्स 4 चैम्बर. ऐसा बैग बनाया जाए कपड़े का जिसमें अंदर 4 कंपार्टमेंट बने हों. जैसे हमारा ये बैग है, ठीक, तो इसमें ऐसे 4 कंपार्टमेंट हैं, ठीक, 3 और 4. अब बात को समझिए, हम एक कंपार्टमेंट में पोटैटो रख सकते हैं, पोटैटो और ओनियन, क्योंकि ये मिक्स होंगे नहीं, खराब होंगे नहीं. एक में हम लोग टोमेटो को रख लीजिए कि भाई वो टूट फूट सकता है, तो टोमेटो, जिंजर, चिली, कोरिएंडर लीव्स, और एक में हम लोग ग्रीन वेजिटेबल. हमारे पास एक ही बैग में 3 कंपार्टमेंट हो गए, तीनों चीज़ें अलग अलग डिफरेंट चीज़ें सेपरेट आउट हो गई. तो अब क्या होगा, जब हम दुकानदार से खरीदेंगे तो भैया इसमें ये डाल दो, इसमें ये डाल दो. वी विल नॉट यूज व्हाट, पॉलीथीन. सो बाय दिस रिड्यूसिंग द यूज ऑफ पॉलीथीन, प्लास्टिक्स, वी कैन प्रोटेक्ट आवर अर्थ. Carry jute or cloth bag for shopping. Waste like the peels of the fruits and vegetable cannot be collected and given to a cow or any other animals. ठीक है बेटा, जैसे हमारा पील्स, छिलके वगैरह है फल के, वेजिटेबल को, उसको आपको कलेक्ट नहीं करना चाहिए और कलेक्ट करके जानवर को दे देना चाहिए. सॉरी, उसको कलेक्ट करके किसको देना चाहिए, जानवर को. एंड गिव टू अ काउ और एनी अदर एनिमल टू इट. वो खा लेगा तो पोल्यूशन नहीं करेगा. दूसरा, बायोडिग्रेडेबल वेस्ट कैन बी यूज टू मेक मैन्योर. बायोडिग्रेडेबल से हम लोग क्या बना लें, मैन्योर बना लें. और बोथ साइड्स ऑफ पेपर शुड बी यूज्ड. अब लिखने के लिए स्टूडेंट्स वेरी इंपॉर्टेंट, यू शुड नॉट टीयर अप द पेजेज ऑफ योर कॉपी. पहला बात, पेज नहीं पढ़ेंगे. दूसरा चीज, आपको दोनों साइड लिखना है. दिस साइड पहले फ्रंट साइड पे लिखो, फिर बैक साइड पे. कुछ बच्चों को मैंने देखा इधर लिखते इधर छोड़ देते. नहीं बेटा, ऐसा नहीं करना. ओके. सेकेंड, रीयूज. रिड्यूस समझ में आ गया. रीयूज, रीयूज क्या कहता है कि हमको, जैसे हमारे पास कोई मटेरियल है तो उसको हम अगेन एंड अगेन यूज करें, अगेन एंड अगेन यूज करें. जैसे फॉर एग्जाम्पल, अब जैम बॉटल हमारे पास है. अब जैम बॉटल, जैम खत्म हो गया तो हमको जैम बॉटल को फेंक नहीं देना है, ठीक. उस जैम बॉटल को हम यूज कर ले कुछ और मटेरियल, नमक रखने के लिए, चीनी रखने के लिए. ठीक है बेटा, ऐसा नहीं है कि हम जैम बॉटल खत्म हो गया तो फेंक दिए जैम बॉटल को, अब दूसरा बॉटल नहीं. एक ही क्या करें, जैम बॉटल है, ठीक. नीडलेसली मेकिंग न्यू प्रोडक्ट्स यूजेज नॉट ओनली एनर्जी. अब जो चीज़ जरूरी नहीं है उसको बनाना.
अब जैसे हमारा हम लोग का पैंट वगैरह खराब हो जाता है, पैंट नीचे से फट गया थोड़ा सा तो उस पूरे पैंट को हमने फेंक दिया। उससे हम दो काम कर सकते हैं, उसको हम हाफ पैंट बना सकते हैं जो हमको समर में काम देगा। दूसरा जो बचा हुआ पार्ट है उससे हम पोछा बना सकते हैं या फिर टेबल वगैरह साफ करने की चीज़ बना सकते हैं। तो ये हो गया रीयूज। क्या हो गया? रीयूज। ठीक। नेक्स्ट वन इज रिसाइकिल। रिसाइकिल क्या है? रिसाइकिल इज वेरी इंपॉर्टेंट। मीन्स ऑल द मटेरियल, आपने देखा होगा बेटा कबाड़ी वाला आता है, वो प्लास्टिक की बोतल, ग्लास की बोतल या फिर इस तरह की चीज़ें जो नॉन बायोडिग्रेडेबल है उसको कलेक्ट करके आपके यहाँ से ले जाता है। आप बच्चों को 2-4 बोतल लेने के बाद थोड़ी सी सम पापड़ी दे देता है तो या फिर पट्टी दे देता है। तो वो क्या करता है, वो मटेरियल्स प्लास्टिक्स के बोतल, ग्लास के, ये सब जो बॉटल्स हैं मटेरियल है उनको वो कलेक्ट करके ले जा करके रिसाइकिल सेंटर पे देता है। वहाँ पे उस मटेरियल को मेल्ट करके और उससे फिर नया मटेरियल बनाया जाता है। और वो मटेरियल, अब जैसे मान लो हमारा वाटर बॉटल है, ये सारा बिस्लेरी का पानी पी के हम फेंकते जा रहे हैं, उसको कलेक्ट करके उससे ले जा करके उससे जो छोटे छोटे खिलौने वगैरह बनते हैं, जो क्रैक्स वगैरह भी निकलता है वो बना देते हैं, टूथब्रश का हैंडल बना देते हैं, और ये जो हमारा कैरी बैग्स आता है उसको बना दिया जाता है। तो ये सब रिसाइकिल सेंटर में उसीलिए उसको ले जाते हैं कि उसको फिर से मेल्ट करा करके उससे हम नया प्रोडक्ट बना दिया जाए। ओके बेटा। नाउ तो हमने क्या कर लिया, रिड्यूस। पहले हमको उसका यूज रिड्यूस करना है, कम करना है। ठीक। वेस्ट हमसे कम हो ये हमको ध्यान देना है। दूसरी चीज़, अगर हमने किसी चीज़ को खरीद ली है जो नॉन बायोडिग्रेडेबल है तो हमको ये ध्यान देना है कि इसको हम फिर से यूज कर सकते हैं या नहीं। तो रीयूज ऑप्शन आ गया। और उसके बाद क्या आता है कि हम रिसाइकिल करेंगे। हम नया प्लास्टिक नहीं बनाएंगे, बल्कि जो हमारे पास प्लास्टिक है वेस्ट हो गया उसी को हम मेल्ट करके फिर उससे हम नया बना लेंगे। ठीक है बेटा। तो इससे क्या होगा, एनर्जी भी बचेगी, मनी भी बचेगा और हमारा नेचर भी बचेगा, पोल्यूशन भी कम होगा। ठीक है बेटा। तो आज के पार्ट में हमने रिड्यूस, रीयूज और रिसाइकिल 3 चीज को पढ़ा। अब बेटा एक क्वेश्चन, प्लास्टिक बूंद और बेल, मतलब ये वरदान है या अभिशाप है? प्लास्टिक बैग्स, प्लास्टिक बॉटल, पाइप्स, रेनकोट, शूज, अम्ब्रेला, बकेट्स, मग, पेन्स, etc. सब all are made up of synthetic material that is known as plastic and all of these are used in our daily lives. सब लोग यूज करते हैं डेली। ओके बेटा। सो however they are harmful, लेकिन ये इस अच्छा तो है, we all are surrounded by the plastic, without plastic we cannot imagine about the life, है बेटा। कि कोई भी हम मोस्टली हम प्लास्टिक के मटेरियल को ही प्रीफर करते हैं। लाइट होता है, ड्यूरेबल होता है और लंबे समय तक चलता है, इसलिए हम उसको यूज कर रहे हैं। लेकिन बेटा क्या है, इट इज़ हार्मफुल फॉर नेचर। द यूज एंड थ्रो कल्चर, कौन सा, जैसे हमारा पेन हो गया, पहले हम लोग का था इंक पेन आता था, निब पेन, जिसको इंक बॉटल में रख करके एक ही पेन से हम पूरे लिखते थे, पता चलता था एक ही पेन से बच्चे, पिता भी लिखे, बच्चा भी लिखा, उसके बाद उसका बच्चा भी लिख रहा है। लेकिन अब क्या है, अब आ गए ये पेन लिखा, जब इंक खत्म तो उसको थ्रो कर दिया। सपोज एक क्लास में एक 60 बच्चे हैं और 60 बच्चे 3 दिन में एक पेन को फेंक रहे हैं, तो 60 मीन्स एक महीने में 200 पेन को फेंक दिया जाएगा। 3 दिन में 60, तुम 3 से मंथ को डिवाइड करो तो 10 आया, तो यानी 600 पेन। और वो 600 प्लास्टिक जो फेंका जा रहा है तो उसको तो फेंक दिया, अब उसको नए उसमें बनाने पड़ेंगे ना जो खरीदेंगे, तो एनर्जी का भी वेस्ट हो रहा है और जो पोल्यूशन हो रहा है वो भी हो रहा है। द लिटरिंग ऑफ प्लास्टिक आल्सो रिड्यूस रेट ऑफ रेन वाटर। ये जो प्लास्टिक है बेटा, ये जो फेंक दिया जा रहा है इधर उधर, ये रेन वाटर परकुलेशन, अब मान लो फर्स्ट मिट्टी को जमीन के ऊपर ये प्लास्टिक आ गया, बारिश का पानी इस पर पड़ेगा तो ये नीचे जा ही नहीं पाएगा, ये प्लास्टिक के ऊपर ही रह जाएगा और यहीं से इवेपोरेट होकर निकल जाएगा।
तो अंडरग्राउंड वाटर टेबल भी हमारा डैमेज हो रहा है। दूसरा, बर्निंग ऑफ प्लास्टिक एमिट्स पॉइजनस गैसेस। जो प्लास्टिक को जलाते हैं तो हार्मफुल गैसेस दैट कॉज मेनी लंग्स डिजीज। फूड थ्रोन, जो हम लोग प्लास्टिक में फूड भर करके ऐसे नचा करके फेंक देते हैं अपने छत से, और उसको जब हमारे कैटल्स खा लेते हैं तो वो उनकी जान तक चली जाती है, क्योंकि वो फूड समझ के खा लिए, अब फूड के साथ प्लास्टिक भी खा लिए, प्लास्टिक डिकम्पोज होगा नहीं, वो उनके स्टमक में स्टिक कर देता है और वहाँ पर इन्फेक्शन काज करता है, जिसकी वजह से वो मर जाते हैं। ठीक है बेटा, तो प्लास्टिक बहुत हार्मफुल है। प्लास्टिक का से बचने के लिए यूज जूट बैग्स और पेपर बैग्स इंस्टेड ऑफ प्लास्टिक बैग। प्लास्टिक बैग ना यूज करके हम क्या यूज करेंगे? पेपर बैग, जूट बैग। दूसरा, डिस्पोज प्लास्टिक बैग्स केयरफुली। हमको प्लास्टिक बैग्स को केयरफुली ध्यानपूर्वक डिस्पोज करना है, उससे कोई एनिमल ना खा सके, वो इधर उधर एनवायरनमेंट में फ्लाई ना करे। डू नॉट बर्न प्लास्टिक बैग्स, हमको जलाना नहीं है। एजुकेट्स पीपल नॉट टू यूज प्लास्टिक और रिड्यूस द यूज ऑफ प्लास्टिक। शॉपकीपर शुड यूज पेपर बैग्स एंड वी, तो शॉपकीपर को पेपर बैग यूज करना चाहिए, और हमको जब भी मार्केट जा रहे हैं तो जूट बैग और क्लॉथ बैग लेके जाना चाहिए। डू नॉट थ्रो प्लास्टिक बैग्स हियर एंड देयर आफ्टर यूज। डू नॉट पुट गार्बेज इन प्लास्टिक बैग्स एंड थ्रो, मैंने बताया ही। ठीक। डू रिसाइकलिंग ऑफ पेपर, रिसाइकिल करो, एक ही पेपर से रिसाइकिल करके दूसरा बनाओ, और वर्मी कंपोस्टिंग करना चाहिए। सो बेटा, दिस आर द वे हाउ वी कैन प्रोटेक्ट आवर एनवायरमेंट, आवर नेचर। ओके बेटा, सो बाय दिस वी हैव कंप्लीटेड आवर चैप्टर। Okay beta, I hope next we will study in next period, next part, and I hope school will be open very soon, so we will meet and discuss all the topic and points. Okay, thank you.